Good morning students. Class 4th lesson 13 The Wonderful Tea Kettle. एक अद्भुत चाय की केतली. A long time ago in Japan there was an old priest who lived in a temple and was very devout. He was also very poor. He cooked his own rice, boiled his own tea, swept his own floor and lived frugally as an honest priest should do. लंबे समय पहले जापान में एक बूढ़ा पादरी जो मंदिर में रहता था। वह बड़ा धार्मिक था लेकिन वो बहुत गरीब था। वो ही कुकड उसने क्या किया, अपने लिए चावल पकाए, चाय उबाली जो उसके फर्श पर बह गए। एक ईमानदारी मतलब वो काफ़ी सिंपल तरीके से एक सिंपल ईमानदार व्यक्ति था, पुजारी था, जो कि उसको करना चाहिए था। वन डे द केटल इन विच ही बॉइल्ड वाटर फॉर हिज टी ब्रोक एंड he did not know what to do as he had no money to buy a new one. But the next morning, behold, a shiny brass tea kettle was sitting outside his door. अब एक दिन उसकी केतली में उसने क्या किया, पानी उबाला चाय बनाने के लिए, जो कि टूट गई। अब वो यह नहीं जानता था कि वो क्या करे। उसके पास ना तो पैसे थे ना ही केतली खरीदने के लिए। लेकिन अगली सुबह उसने क्या देखा, एक चमकती हुई मेटल की केतली उसके दरवाजे के बाहर रखी हुई थी। द priest was overjoyed. He built a fire in the square fireplace in the middle of the floor. A rope and chain to hold the rice pot and tea kettle hung down from the ceiling. Soon the fire blazed merrily. At the side of the fireplace on the floor was a tray filled with tiny teacups, a pewter tea caddy, a bamboo tea stir, and a little dipper. The priest swept his ashes from the ash of the hearth with the little broom made of hawk's feather. He was just about to put on the tea when sus sus sang the shiny tea kettle spout. And then patari patari sat the lid as it flapped up and down, and the kettle swung backwards and forward. What does this mean? Said the old priest with a start. Wonder of wonder, the spout of the kettle had turned into a badger nose with its big whiskers, while from the other side sprouted out a long bushy tail. उसके बाद क्या था, पृष्ठ जो था बहुत खुश था। पृष्ठ बहुत खुश था और क्या हुआ, उसने फर्श के बीच में चौकोर चिमनी में आग लगा दी। किस लिए? उस चाय की केतली में, क्योंकि उसको बाहर चाय की केतली रखी मिल गई थी। रस्सी, चेन, चावल के बर्तन, चाय की केतली को छत से नीचे लटकाए रखने के लिए। जल्द ही आग पूरी तरह से बुझ गई। उसकी आग बुझ गई और जैसे ही छोटे छोटे चाय के कपों से भरी हुई थी। एक चाय वाला चाय के लिए उसने क्या किया, थोड़ा कप पादरी ने चूल्हे में किनारों में राख के पंख से बने छोटे झाड़ू के साथ उसने राख को बहा दिया। वह चाय को डाल ही रहा था, सुस अचानक उसने चाय बना दी। उसने उस पर आंच पर रखकर उस चाय को बना दिया और जैसे ही अचानक एक आवाज़ आने लगी, सुस और स्पाउट जो पटारी अचानक से वो आवाज़ आई। उसने क्या किया, चाय को डाल रहा था, वो चाय क्या होगी, केतली जो है फड़फड़ाने लगी। केतली आगे पीछे झूलने लग गई, आगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे झूलती है। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन्स? इसका क्या मतलब? उस बूढ़े पादरी ने कहा अपने आप से हैरान होकर, बहुत हैरान हो गया वो। हैरान होकर केतली जो थी एक जानवर में बदल गई, क्योंकि वो बैडजर के रूप में चेंज होगी। बैडजर क्या होता है? एक जानवर होता है जिसमें ग्रे कलर के फर होते हैं और उसके ब्लैक और वाइट कलर की लाइन उसके सिर पर होती है और उसमें एक उसकी पूंछ निकल गई। एंड विस्कर वाइल फ्रॉम द अदर साइड स्प्राउटेड ए लॉन्ग बुशी टेल। उसकी पूंछ निकल गई और वो एक बड़े जानवर के रूप में, आधी केतली और आधा वो जानवर के रूप में बदल गई। हो cried the priest, and in terror he dropped the tea caddy, spilling the green tea all over the matting. Now 4 heavy legs appeared under the kettle. The strange thing, half badger, half kettle, jumped off the fire, began running around the room. To the priest's horror, it leaped on a shelf and puffed out its burning belly and began to beat a tune with its 4 paws as if it were a drum. The old priest's pupils, hearing the racket, rushed in after a lively chase.
Upsetting piles of books and breaking some of the teacups, they caught the badger, squeezed him into a cage used for storing pickled radishes. They fastened down the lid with a heavy stone and felt sure that the strong odor of the radishes would kill the beast. No man could survive such a smell, and badger certainly could not. उसके बाद हो कहकर पादरी चिल्लाया और उन्होंने चाय की केतली को पूरी तरह से क्या किया, वो हरी चाय को उसमें गिरा दिया। अब कैटल झुकी के नीचे जो थी 4 टांगे दिखाई देने लगी और वो उसे अद्भुत सी चीज़ नजर आ रही थी, आधी केतली आधा जानवर, जो कि आग के ऊपर से कूद गया और कमरे में चारों ओर दौड़ने लगा। पुजारी ने डर के मारे शेल्फ पर छलांग लगाई और उसके पंजे में उसके पंजे से एक आवाज़ आ रही थी, जैसे उसने अपने शिष्यों को उसने तेज आवाज़ लगाई। पादरी ने बाहर शिष्यों को और उसका पीछा करने के लिए उसने क्या किया, उसको हर चीज़ को तोड़ना शुरू कर दिया। वो उसको परेशान कर रहा था। ओल्ड मैन ने उसे पकड़ नहीं पाया। उसने उसको बुलाया पड़ोसियों को। कुछ समय के बाद उन्हें बैडजर को पकड़ लिया और एक कैज में डाल दिया। कैज क्या होता है? एक गोल लकड़ी का डिब्बा, जो कि मसालेदार मूली के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिब्बा होता है। और उसने क्या किया, उस एक भारी पत्थर से साथ उस ढक्कन को तेजी से ढक दिया और ये महसूस किया कि मूली की मजबूत गंध, मूली की जो स्मेल होती है, जानवर को मार देगी। कोई भी आदमी इस तरह की स्मेल से बच नहीं सकता और बैडजर निश्चित रूप से नहीं बच सकेगा। The next morning, the tinker of the village called in, and the priest told him about his strange visitor. Wishing to show him the animal, he courteously lifted the lid of the cask. After all, the badger might be still alive, in spite of the strong vinegar, pickles, and lo, there was nothing but the shiny brass tea kettle. अगली सुबह टिंकर, जो कि चीज़ों को रिपेयर करता है, उसको गांव में बुलाया गया। प्रिस्ट ने उसे बताया कि उस स्ट्रेंज विजिटर के बारे में। उस पादरी ने उसे सारी बातें बताई भी, ऐसे ऐसे अद्भुत प्राणी निकला केतली में से, वो चेंज हो गया। विशिंग एनिमल को दिखाने के लिए, उसकी विश थी उस एनिमल्स को दिखाने की, भाई उसकी इच्छा थी कि उस एनिमल्स को दिखाता हूँ। उसने बड़े प्यार से उस लिड को उतारा, उस स्ट्रॉन्ज जो कि वो डिब्बा था उसको उतारा और उसने उस स्ट्रोंग, उसमें से जो स्मेल आ रही थी, उसके बाद भी हो सकता है, उसने सोचा कि हो सकता है वो जिंदा हो। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस चमकती हुई ब्रास की टी केटल थी। वो जो जानवर था दोबारा टी केटल में चेंज हो गया, लेकिन वो जब पहले था, वो टी केटल उसे मिली थी जब उसने चाय बनाने के लिए उसका यूज़ किया, तो वो आधा जानवर और आधा टी केटल में चेंज हो गया था, जिसे कि बैडजर बोलते हैं, उसमें बदल गया था। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी चैप्टर हम कल ही रीड करेंगे, रिमेनिंग चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स।